Précis is academic summary, and it is both reading and writing. That's why it is a bit challenging, but still it is not impossible. Many people do it. You can do it. That's why have a positive mindset that yes, I can do it. Précis may be complicated, it may be challenging. It is a skill, Précis skills, no doubt. You have to take it seriously so that you prepare it in a proper way. However, it is not impossible. Précis is possible. Initially, it will take more time from you, but with the passage of time, then you will become habitual, you will be used to it, and then summarizing skills will not be a big problem for you. It is also a reality that Précis is the result of your reading skills and your writing skills, and it needs a lot of practice. And one day you cannot master it because the double jeopardy is that uh, Précis is always taken from very difficult original paragraphs. Just its reading, understanding, comprehension that is complicated, and then you have to give it in your own paraphrased words with condensation. So the point is paraphrasing and condensation. Paraphrasing means that you give meaning of the passage but in your own words. Meaning is from the passage, but words are your own. It is called paraphrasing. And then you also make it condensed. Condensed means that you make it short, you make it summarized, it is precise, it is concise. That's why it has a multi-dimensional approach. Please make a comment, everybody, that Précis is both reading and writing, and it is academic summary. Précis is both reading and writing, and it is academic summary. Précis writing is Pressing is both reading and writing, and it is academic summary. It is summary, but it is academic. Academic means that it is from SPAL, SSPPAL, science, spirituality, philosophy, psychology, art, and law. So you take it from some academic source which is knowledgeable. Whenever I feel a little boring or I don't have to read anything, so I start reading past CSS Précis paragraphs. So past CSS Précis paragraphs can be an interesting source of reading. In Google, it is available from 1971. From 1971 till today, 2024-23, you get all the Précis of the past papers. If you write in Google CSS Précis and composition, paper 1971, 1972 or 1975, so you will be getting all the papers. So there are around 40 years Précis paragraphs, and they have selected it from very advanced texts. That's why it is always a pleasure to read those paragraphs.
तो एक आम समरी और प्रेसी में ये फ़र्क है कि प्रेसी जो है ये हमेशा एकेडेमिक होती है। एकेडेमिक का मतलब है इल्मी, नॉलेज बेस्ड होता है। ये आम बातें नहीं होती, ये गहरी बातें होती है। तो आप गूगल से जो है 70 से लेकर जो है आज तक सारी प्रेसी के पैराग्राफ्स आपको मिल सकते हैं। उसको सिर्फ पढ़े, बड़ा मज़ा आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होते हैं और एग्जामिनर भी इसको बड़े ढूंढ ढूंढ के निकालता है, क्योंकि प्रेसी जो है वो आम राइटिंग नहीं है। जब भी आप प्रेसी की राइटिंग पढ़ते हैं तो वो आम राइटिंग नहीं है। दैट्स वाई इन द आउटसेट आई टोल्ड यू दैट प्रेसी इज बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। आप रीडिंग भी करते हैं और आप राइटिंग भी करते हैं। तो अगर आपको रीडिंग नहीं आती तो फिर आप राइटिंग कैसे करोगे? दिस इज लॉजिकल एंड इट इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की बात है कि आपको रीडिंग नहीं आती तो फिर आप राइटिंग कैसे करोगे? दैट्स वाई आवर दिस कोर्स इज फोकसिंग बोथ ऑन रीडिंग एंड प्रेसी राइटिंग. So the best way is that, for example, by this lecture, आप मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, तो आप इस लेक्चर का समरी बनाएं कि आपने आज क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न। तो ये आपकी प्रेसी मेकिंग स्किल जो है वो डेवलप होंगे। आप कोई किताब पढ़ते हैं, उसकी समरी लिखे। प्रेसी जो है ओरिजिनली इन एडवांस कंट्रीज इट इज़ यूज फॉर बुक्स, ये बुक्स के लिए यूज़ होती है, पैराग्राफ्स के लिए बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये पैराग्राफ्स के लिए यूज़ होती है। तो नोट्स में आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगी कि यार ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट इसलिए है कि जनरली प्रेसी जो है दैट इज़ यूज फॉर बुक्स। ये यूनिवर्सिटी में वहाँ असाइनमेंट होता है, प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देता है कि भाई इस किताब की प्रेसी करो, इसकी एकेडेमिक समरी करो, इसका जो है इसको शॉर्ट करके मुझे पूरी किताब दे दो। बट इन पाकिस्तान यू हैव वन पैराग्राफ और टू पैराग्राफ्स एंड देन यू समराइज इट इनटू 1/3, 1/4 भी ठीक है, लेकिन 1/3 से जो है कम नहीं। तो अब इसको मज़ीद भी मतलब 4 में से आप एक हिस्सा भी ले सकते हैं और 4 में से जो है 3 हिस्से आप 1/3 का मतलब ये है कि आप हर 3 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस लिखे, और 1/4 का मतलब ये है कि हर 4 में से आप एक सेंटेंस लिखे, 4 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस। तो दिस इज अप टू यू। हाउएवर द बेस्ट वे इज 1/3 कि आप इसका 1/3 समरी करें। आपको पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ ले लो, पढ़ो, समझो किस टॉपिक पे है, वो टॉपिक उसका टाइटल बनता है। फिर आप अपने अल्फाज में उस पैराग्राफ को शॉर्ट करके रिप्रोड्यूस करते हैं, बट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। यू टेक आइडियाज मीनिंग फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। अब इसी ग्रुप में प्रेसी का एक लेसन भी है, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि प्रेसी नीड्स द फार्मूला ऑफ कू, 5 दफ़ा सी और 2 दफ़ा ओ। इस फार्मूले का आपको समझ आ जाए तो बस आपका प्रेसी हो गया। थियरी आपको समझ आ गई, अभी आके आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कू 5 times C and double O stands for that प्रेसी must be concise। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि भाई प्रेसी का मतलब ही शॉर्ट है। प्रेसी इज नाउन, प्रिसाइज इज एडजेक्टिव, एंड प्रिसाइज इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्साइज। तो आपका जो प्रेसी है वो तो ओरिजिनल से कम होना चाहिए, ठीक है। 4 सेंटेंसेस है तो उसमें से आपने एक लेना है, या 3 सेंटेंसेस है तो उसमें से आपने एक लेना है, बाकी 2 को आपने जोड़ना है। This is concise. And then the biggest problem in Prezi is that it is concise, but at the same time, it is also
precise. It is also complete. So Imran Khan has given you in an interesting way C5O2. तो 5 C's का क्या मतलब है? सेकंड C मीन्स कंप्लीट. अब ये प्रॉब्लम है. प्रेसी मस्ट बी कॉन्साइज, ये शॉर्ट होना चाहिए बट कंप्लीट होना चाहिए. सो कंप्लीट इज फॉर द मीनिंग, फॉर द सेंस, कि द मैसेज मस्ट बी कंप्लीट while the passage must be concise. फिजिकली वो कम होगा, मीनिंग जो है उसका पूरा होगा. सो दिस इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ प्रेसी. मतलब ये तो बड़ा आसान है ना कि आप 5 सेंटेंसेज है या 10 सेंटेंसेज है तो 10 की जगह 3 लिखो, 3 3.5 सेंटेंसेज लिखो, बात खत्म. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि भाई आपने सिर्फ इसको शॉर्ट नहीं करना, आपने मैसेज को कंप्लीट भी पहुंचाना है. यू हैव टू गिव द कंप्लीट मैसेज. हियर इज द बिग प्रॉब्लम. इसको छोटा करना आसान है लेकिन मैसेज में आपने कुछ नहीं छोड़ना. So please make this comment that the passage must be concise while the message must be complete. This is the technical point. The passage must be concise while the passage must be complete. जो मैसेज है वो कंप्लीट होगा, जो पैसेज है, जो पैराग्राफ है वो शॉर्ट होगा. बात आपने वही पूरी पहुंचानी है, कंप्लीट पहुंचानी है, लेकिन कम अल्फाज में पहुंचानी है. दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ प्रेसी. सो द पैसेज मस्ट बी कंसाइज व्हाइल द मैसेज मस्ट बी कंप्लीट. तो ये कंसाइज भी है और कंप्लीट भी है. देन कम्स क्लियर. अब क्लियर का मतलब ये है कि नो वोकैबुलरी, नो डिफिकल्ट वर्ड्स. इसमें अपनी कोई इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, बड़ी बड़ी मुश्किल अल्फाज बेशक ओरिजिनल में हो लेकिन कि प्रेसी में नहीं होना चाहिए. क्लियर, सिंपल. कोहेरेंट मीन्स दैट देयर मस्ट बी फ्लो. वो जंपिंग नहीं आप कर सकते कि इधर से अपने 2 सेंटेंसेस उठाए, उधर से उठाए, उधर से उठाए, आपने लिख दिया. नो, उसमें रबत होना चाहिए, कनेक्टिविटी. दैट इज कोहेरेंट एंड नॉट कोहेसिव. इमरान खान, कोहेसिव कोहेरेंट तकरीबन एक चीज है. जो और सी है दैट इज करेक्ट, करेक्ट, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. उसमें आपने ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी. बिकॉज प्रेसी इज एडवांस्ड इंग्लिश. प्रेसी मीन्स दैट योर ग्रामर इज ओके, योर स्पेलिंग्स आर ओके, योर पंक्चुएशन आर ओके. And the last 2 points, that is original and objective. Original means that you have to go according to the procedure of the original paragraph. ओरिजिनल में जिस तरह की स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो तरतीब है, जो ऑर्डर है, जो टेंस है, जो भी चीज़ें हैं, आपने उसको फॉलो करना है. थोड़ा बहुत आप टेंस को चेंज कर सकते हैं, आप उसको पास्ट टेंस में ला सकते हैं. पास्ट टेंस इज द प्रिफर्ड टेंस ऑफ प्रेसी. एंड ऑब्जेक्टिव मीन्स नथिंग फ्रॉम आउटसाइड. इसमें आप अपनी तरफ से जो है कोई चीज नहीं डाल सकते. ऑब्जेक्टिव मीन्स नथिंग फ्रॉम योर माइंड, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड. आप इसमें कोई चीज एडिशन नहीं कर सकते.
कभी कभी लोग जो है ना प्रेसी में आके एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, मज़ीद उसको बढ़ाते हैं, अपने तरफ से कोई आइडियाज़ डालते हैं, वेदर यू एग्री और यू डोंट एग्री, बट यू हैव टू राइट एग्जैक्टली what the writer has given you. Some things are not allowed in Prezi. Prezi में उसकी इजाज़त नहीं है. Number 1 is there cannot be direct speech. Direct speech जो है उसमें आप नहीं कर सकते. Direct indirect जो है वो आप no subjectivity and nothing from outside also. बाहर से आप इसमें कोई चीज़ अपने माइंड से नहीं डाल सकते, अपने माइंड के थ्रू. सो देयर शुड बी नो डायरेक्ट नरेशन. आपने इसको इनडायरेक्ट में लिखना है. अगर ओरिजिनल में डायरेक्ट है तो आपने उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. एक्टिव वॉइस जो है वो ठीक है, मना नहीं है, बट द प्रेफर्ड वन इज पैसिव वॉइस. इसको आप पैसिव वॉइस में लिखिए. No direct speech. Preferred is passive voice. No spelling, grammar, punctuation mistakes. No illustrations, no examples, no explanation, no analysis, no opinion. आपने इसमें कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं डालनी. Now, how to make it 1/3? इसको 1/3 हम कैसे करेंगे? जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठता था तो मुझे उन्होंने प्रेसी का पैराग्राफ दिया. मैंने फौरन पहला लाइन गिना, कितने वर्ड्स है? 10. दूसरे लाइन में कितने वर्ड्स है? 9 है, 10 है. तो मैं सपोज करता हूं कि एक लाइन में 10 वर्ड्स है. लाइंस कितने हैं टोटल? लाइंस है जी 10. तो 10 × 10 100. टोटल अल्फाज कितने हैं? 100 है. डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? तो मैंने इसको 33, तकरीबन 30, 33, 35 की वर्ड्स जो है मैंने लिखने हैं. तो एक रफ ड्राफ्ट बंदा बना ले, फिर वर्ड्स को काउंट करे. ज़्यादा है तो कोई और चीज़ शामिल करे, कम है अगर वर्ड्स जो है वो आपकी ज़्यादा है तो हटा दे, कम है तो बढ़ा दे. तो ये इसका तरीका है. प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा. नोट्स में, लेसन में काफ़ी एग्जांपल्स भी है. एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश और हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन इससे भरा हुआ है. प्रेसी के रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है. डरना नहीं है. पैराग्राफ आपने ले लिया, उसको पढ़ो, समझो, अपने अल्फाज में उसकी खुलासा लिख लो. 2-3 ड्राफ्ट बनाओ, फाइनल ड्राफ्ट जो है फिर वो सबमिट करो. दूसरा तरीका प्रैक्टिस का ये है कि आप सॉल्यूशन को न देके, प्रेसी का आंसर न देके, अपना प्रेसी बनाएं आराम से और फिर उसको कंपेयर करें कि राइटर ने क्या सॉल्यूशन दिया है. आप गूगल में भी कर सकते हैं कि जी आप सैम्पल पैराग्राफ उधर से उठाए और खुद समरी बनाए, फिर उसको कंपेयर करें. मुझे भी आप किसी भी टाइम सेफ ELC व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रेसी दे सकते हैं. प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है CSS में, वो ज़्यादा 2.5-3 पेजेस का होता है, लेकिन घंटे आपके पास 3 है तो आराम से आपको प्रेसी करने के लिए 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट मिल सकते हैं. तो जल्दी नहीं करें. पहले 5-10 मिनट उसको समझे, 5-10 मिनट पहला ड्राफ्ट बनाए, दूसरा बनाए, फिर आखिरी 10 मिनट में उसको पेपर में लिख दे. पाँच छः अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं. So, have you ever done any presi in your lifetime? If yes, what were your impressions? Or what are your questions, your remarks, your comments? अगर आपने कभी प्रेसी नहीं किया है, so what is your plan to do it? Whether my today's class was sufficiently informative
If you have any point to ask, so please go ahead. लोग तो 80 भी लेते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा विकेबलरी है, विकेबलरी भी है उसमें जो है। डरो मत यार, आपने कोई कर दिया कमेंट, गलती भी हो गई तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा आसमान गिरेगा। कभी जिंदगी में डरना नहीं है, डर बड़ी फजूल चीज़ है। डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है कामयाबी का। तो प्रेसी की 25 मार्क्स है, तो 25 में से जो है आप 15-20 ले सकते हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन की 20 मार्क्स है, 15 उधर ले सकते हैं, तो आपको 30-35 मार्क्स यहाँ से मिल गए। बाकी तो ग्रामर के, वोकेबलरी के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इजी होते हैं, तो लोग इसमें 80 भी स्कोर करते हैं, 80-90। बड़ा स्कोरिंग पेपर है ये। It should be attempted at the first or last. The first, a first नहीं होता, the first. It should be attended in the beginning or at the end. बेहतरीन फ्रेज ये होगा, in the beginning, in the start और in the end. तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आपको वोकेबलरी और ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं 100%, तो पहले उसको करें, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करें और आखिर में प्रेसी करें. दैट विल बी द बेटर ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ताकि आपके पास टाइम बच जाए. आप आराम से जो है ना, क्योंकि वो तो वोकेबलरी, MCQs और ग्रामर या आपको आता है या नहीं आता, उसमें कुछ ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है. प्रेसी में आप सोच विचार करते हैं समरी बनाते हुए. Everything again boils down to reading. Extensive reading, preparation, listening, practicing, writing. आखिर में नतीजा इसी चीज़ पे आ जाता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना रीडिंग करते हैं, कितना टाइम बचाते हैं, कितना टाइम ज़ाया नहीं करते, अपनी एनर्जी का हिफाजत करते हैं कि नहीं, अपने फोकस का हिफाजत करते हैं कि नहीं. आखिर में यही चीज़ आपकी हेल्प करती है. No, these are just conjectures. Conjectures. CONJECTURE. Conjecture. Conjecture means surmise. SURMISE. Surmise means guesses. ये अंदाजे होते हैं लोगों के. कभी कभी लोग जो है ना, प्रेसी की अहमियत बढ़ाने के लिए इस तरह के काम करते हैं. ठीक है, अहमियत बढ़ाने के लिए ये कहते हैं यार प्रेसी पास हो गया तो सब कुछ हो गया. तो दिस इज एन एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट. एग्जाजरेटेड. एग्जाजरेटेड का मतलब क्या है? हाइपरबॉलिक. HYPERBOLIC. हाइपरबॉलिक, एग्जाजरेटेड. इसका मतलब क्या है? मुबालिगा आराई. कि लोग मुबालिगा करते हैं, बड़ी बात करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. तो प्रेसी की तो 20-25 मार्क्स है, तो 100 मार्क्स का पेपर है. तो प्रेसी में अगर आप 20 की 20 मार्क्स भी ले ले तो 80 मार्क्स तो और भी है ना. तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वेट, शेक्सपियर सेज. कि मुख्तसर बात करना जो है ये अकल की हकीकत है. सोल का मतलब है हकीकत, विट का मतलब है विजडम, ब्रेविटी का मतलब है इख्तिसार. यस. सो टाइटल
इज द समरी ऑफ द समरी ऑफ द समरी। टाइटल जो है ये समरी के समरी का समरी है कि भाई टॉपिक क्या है। टाइटल का मतलब है टॉपिक। ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है? एजुकेशन के बारे में है, डेमोक्रेसी के बारे में है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है? तो एक वर्ड भी नहीं होना चाहिए, पूरा सेंटेंस भी नहीं होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, फ्रेज होना चाहिए। तो आप में से कामयाब इंसान वो होगा कि जिसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे कि वो डेली जो है एक प्रेसी किया करे। मुझे दिखाए या न दिखाए, लेकिन दिन में एक प्रेसी किया करे। प्रेसी आपका माइंड टाइट करता है, आप बेहतरीन रीडर बनते हैं क्योंकि आप उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको लिखते भी है, फिर उसको सोल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये एक खूबसूरत एक्सरसाइज है आपकी एकेडमिक स्किल्स बढ़ाने के लिए। So please read the notes, today's notes on Pressy writing, and there are some examples also. And I hope that very soon you will start practicing it. All the best. We will be having 2 more lectures on Pressy. If you face some problem or you are having some difficulties, some challenges, so please discuss it with me openly. Don't waste your time, energy, and focus. So now let us go to LPCS, and there we will be discussing 4 important life skills. Thank you for your nice words.